کا یہ اعزاز ہے کہ یہاں کے اسٹاف کی ڈیڈیکیشن ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا ہیلتھی اور کمفرٹیبل ایجوکیشن کا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں کہ بچے ہمیشہ یہاں سے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو ہو کر نکلیں، کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسا اسکل ہو کہ وہ سوسائٹی میں جب کہیں موو کرے تو صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈگری لے لی ہے، پیس آف پیپر لے لیا ہے، پیس آف پیپر آپ کو کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پرووائڈ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہاں پر آپ کے لیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہم ارینج کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، جدید دور ہے، بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی کوشش ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے آن لائن کام کر لیں، کوئی ایسی چیزیں سیکھ لیں، کچھ اسکل سیکھ لیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں پر اپنا ایک لینگویج لیب کا آغاز کر رہے ہیں، ہم اس کو اسٹارٹ کروا رہے ہیں جس میں ہم آپ کے جو بیسک کمیونیکیشن اسکلز ہیں ان کو امپروو کروائیں گے کہ آپ نے سوسائٹی میں موو کس طرح کرنا ہے، جب آپ نے یہاں سے انگلش آپ کے پاس ہوگی تو آپ نے انٹرویوز کیسے کلیئر کرنے ہیں، آپ نے عام زندگی میں کانفیڈنٹ ہو کے بولنا کیسے، کیونکہ انگلش ایک ایسی زبان ہے جس کو ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا، حاوی کروا دیا گیا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جس طرح سے ہماری ریجنل لینگویجز ہیں اسی طرح سے انگلش لینگویج بھی ہے، اس کو جسٹ لینگویج لیں، اس کو اپنے پہ سوار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں خطاطی کی کلاسز ہم اسٹارٹ کروا رہے ہیں، کچھ بچے جو بلکہ سب سے میں کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی رائٹنگ کو بہتر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسا فن ہے جس کا آغاز عربک اور لیٹن سے ہوا تھا، لیکن اب جو ہے یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اس کو یہ پھیل چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے یہ کمپیوٹر کورسز ہے، امیزون کی ٹریننگ ہے، آن لائن ٹریننگ ہے، جس میں سب سے زیادہ فائبر پر ورک ہو رہا ہے، بچے یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب چینل ہے، جو لوگ چینل بنا کر اس پر ارننگ کرتے ہیں اس کی ٹریننگ دی جائے گی آپ کو۔ ایم ایس آفس جس میں ورڈ ہے، جو آپ لوگ لیٹرز ٹائپ کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، آفیشیل لیٹرز دیتے ہیں، اس کی ورکنگ سکھائی جائے گی آپ کو۔ اس کے علاوہ ایکسل پر جو کام کیا جاتا ہے، شیٹس بنانا سکھائی جاتی ہے، پاور پوائنٹ پی پی ٹی جس کو کہا جاتا ہے، جس پر آپ لوگوں نے اپنی پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے سلائڈ بنا کر، یہ ساری ٹریننگ جو ہے آپ کو یہاں پر کالج میں پرووائڈ کی جائے گی۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں اکٹھے کیوں ہیں آپ لوگوں کی اورینٹیشن کے لیے، میں یہاں پر اسٹیج پر اپنے پرنسپل ریاض جیسے آپ کو بتاؤں گی کہ سر یہاں آئے اور پورے اسٹاف کا، ساری فیکلٹی کا جو ہے وہ باقاعدہ انٹروڈکشن کروائیں آپ کو۔ جی سر میرا نام پروفیسر ریاض جاوید ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں، لیکچرار ہوں اور اردو کا طالب علم ہوں، لٹریچر کا طالب علم ہوں میں، اور اس کے علاوہ میری جو ذمہ داری ہے، جو ہیڈ آفس میں پروفیشنلی میری ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، رفا انٹرنیشنل۔ میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ آج ہیں تو ریکویسٹ کر لیجیے، آج ہیں رفا انٹرنیشنل کالج ہیڈ آفس سے میری ذمہ داری پرنسپل لگائی ہے جب سے یہاں رفا کا کیمپس آیا ہے۔ میری آواز سب تک جا رہی ہے بچے؟ اور مکر انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کی ذمہ داری بھی ابھی میرے پاس ہے، اتھارٹی فلائی ان کو بھی میں معمولی ویلکم کرتا ہوں، نامزد کہتا ہوں آپ کی فلائی، اور بچوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو بیٹا آج کا یہ جو ایک تعارفی چھوٹا سا ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، یہ جو میٹ اپ ہے، اس کا پہلے بھی ذکر اساتذہ کرام سے ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایک سکیچ ضرور ہوگا۔ میں بارے دیگر بتایا دیتا ہوں کہ اورینٹیشن اس کا ہے، مطلب یہ کہ ہم پورا سال کیسے لے کے چلیں گے آپ کی اسٹڈیز کو، اور ہمارے کون لوگ پڑھاتے ہیں، وہ کتنے قابل ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں، ہمارا طریقہ تدریس کیا ہے، طرز تدریس کیا ہوگا، ہم آپ کو تعلیم اور تعلق کے تعلق سے کیسے جڑے رکھیں گے، اور ہم کس طرح کا جو ہے ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں، اور کس طرح کا ایک پیغام جو ہمیشہ میں دیا کرتا ہوں کہ پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ پڑھا لکھا ہونا، بڑے ذمہ دارانہ جملے بولے میں نے دو، پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے، پڑھا لکھا کوئی ہو تو بھی خیر ہے،
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पढ़ा लिखा ना हो तो भी इतना बड़ा गुनाह नहीं है। पढ़ा लिखा हो या ना हो, तालीम याफ्ता होना बड़ा जरूरी है इंसान। तालीम याफ्ता होना में और पढ़ा लिखा होना में क्या फर्क है, मैं बता देता हूँ। पढ़ा लिखा तो पढ़ सकता है और लिख सकता है, आसान से काम मौजूद है, पैगाम भी खुले हैं, मेहरबानी होगी। हम भी इसी किश्ती के मुसाफिर हैं, हम भी इसी गर्मी में मौजूद हैं। आज है तो जिंदगी के तब से ये रौनक है, हम खाली क्या करेंगे। मीडिया वाले मुझसे ज़्यादा मीडिया वाले मेरी तरफ से मैं इस डिपार्टमेंट उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे बस 5-10 मिनट के लिए आखिरी। अच्छा, पढ़ा लिखा जो पढ़ सकता है लिख सकता है, कहीं भी कुछ लिखी हुई तहरीर हो उसको पढ़ सकता है, और वो तहरीर उसने लिखी है तो लिख भी सकता है। ठीक है, ये है पढ़ा और लिखा हुआ शख्स। और एक शख्स ने उस पढ़े लिखे को समझ लिया और उसके मुताबिक वो रिएक्ट कर रहा है। उसको कहा गया है कि किताब में लिखा हुआ है कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना दाने हाथ से शुरू करें, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। ये उसको याद हो गया है, जैसे मुझे याद है, और वो उस पर अमल नहीं कर रहा। वो पढ़ा लिखा है, वो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। अगर वो अमल नहीं करता तो तालीम याफ्ता नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, वो चाहे रिफा कॉलेज हो, चाहे कोई भी इदारा हो, किस सोसाइटी का, किसी भी इदारे का बच्चा हो, तालीम याफ्ता जरूर होना चाहिए। उस बच्चे को तालीम याफ्ता होना चाहिए। अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो भारत के साथ वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वज़ीर आज़म बन गया, कुछ भी बन गया है, वो मेरे किसी खाते में नहीं आता। मैं उसको कुछ भी नहीं सकता, खात भी जीरो भी नहीं है। अगर बहुत पैसे कमा रहा है, गाड़ी पे सवार है, उसके बाद बंगले हैं, कोठियां हैं, जायदादें हैं, जमीनें हैं, उसने उस पढ़े और लिखे होने से इतना फायदा उठा लिया कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी खरीद ली, उसने कोठी बना ली, उसने जमीनें खरीद ली, और वो इस पे इतरा रहा है कि मुझे नौकरी मिली, मैंने बिजनेस किया, मैंने ये किया, मैंने इतना कुछ कमा लिया, तो तरक्की हुई। इल्म के बड़े फायदे हैं। जो कंसेप्ट आपको पहला था, यार पढ़ाई बड़ी चीज है, इल्म बड़ी चीज है, देख के बंदा गाड़ी पे जा रहा है, इल्म बड़ी चीज है, बड़े अच्छे कपड़े हैं इसके, इल्म बड़ी चीज है, इसने बड़ी कोठी बना ली, गाड़ी बना ली। इल्म का मकसद है कि अगर उसकी जिंदगी में, उसकी शख्सियत में तब्दीली नहीं आई तो वो पढ़ा लिखा है, वो तालीम याफ्ता वाला नहीं है। अगर आप देख लें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं मदीनतुल इल्म हूँ और अली जो है इसका बाबुल इल्म, दरवाजा इल्म का, और हम इसको दुनिया को फेंकते हैं, दूर फेंकते हैं, तलाक देते हैं, खत्म है, हमारी जिंदगी में इसकी अहमियत ही नहीं है दुनिया की पैसे की। तो फिर हम इल्म कहाँ से आ रहा है, और वो कौन लोग थे और हम कौन लोग हैं? वो तो आबा थे तुम्हारे और तुम क्या हो, इकबाल कहता है, वो तो आबा थे तुम्हारे और तुम क्या हो, हाथ भरे, हाथ पे हाथ धरे, मुंतज़िर फरदा हो, हाथ पे हाथ धरे, मुंतज़िर फरदा हो, कल का इंतजार कर रहे हो, हाथ पे हाथ रखे, कोई और हमारे लिए आके मसाइल हल करेगा। कभी हम वज़ीर आज़म नीले रंग का वज़ीर आज़म, कभी पीले रंग का, तो कभी हम जनाब तस्वीर वाला वज़ीर आज़म, तो कभी हम पैंट कोट वाला वज़ीर आज़म, तो कभी हम टोपी वाला वज़ीर आज़म चाहते हैं, तो वो हमें टोपी पहना के सारे चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते ना, हम चाहते हैं हमारे लिए कोई और कुछ करे। ठीक है, कि तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो, झूठ मत बोलो, कोई मत नारे लगाओ मैं फलां का चाहने वाला हूँ, फलां का चाहने वाला हूँ, तुम्हारे और उनके अमल में भी कोई तजाद है ढेर सारा। तुम्हें आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार, वो किरदार, तू साबित तो सही आ रहा। तुझे आवाज से अपने जिन बुजुर्गों के नाम पे तुम 1400 साल से जनाब पूरा जनाब दुनिया को जनाब कह रहे हो ना कि मैं उनका मानने वाला हूँ, तुम उनके मानने वाले नहीं हो। तुम्हारे किरदार में और उनके किरदार में, तुम्हारे गुफ्तार में और उनके गुफ्तार में बहुत सारा फर्क है। तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार हो, किरदार, तू साबित हो सही आ रहा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। तो प्रैक्टिकल हमें होना पड़ेगा, इसका नाम इल्म है। हमें इल्म से इबादत के साथ, इल्म के साथ जोड़ दिया गया अमीर होने को और गरीब होने को। जो पढ़ा लिखा होगा अमीर हो जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो गरीब रहता है। इल्म का गरीब होने से, अमीर होने से सीधे से कोई ताल्लुक है ही नहीं। इसलिए आज लोग कल जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते कि यार उसने क्या किया पढ़ के, तूने क्या किया पढ़ के, तुम भी तो धक्के खा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं जहाँ से जनाब थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, तू एक क्लर्क लगा हुआ है, क्या हुआ,
फला बंदा वो पढ़ा भी नहीं है, उसकी इतनी सारी जमीनें हैं, तुम्हारी जो जमीनें थी तुम्हारे बाप ने वो भी तुम्हारी पढ़ाई पे लगा दी, क्या फायदा, तुम्हारा बाप भी बेवकूफ था, तुम भी बेवकूफ। तो इल्म का ताल्लुक मादरत के साथ अमीर होने से नहीं है। इस कंसेप्ट को निकाल देंगे तो इदारे भर जाएंगे फिर से। ये कंसेप्ट इतना ज्यादा हावी हो चुका है पूरी सोसाइटी के अंदर कि हम लोग अमीर नहीं हो रहे तो लिहाजा नौकरियां नहीं मिल रही तो लिहाजा पढ़ना भी नहीं है। पहली बात तो ये कि रिफा इंटरनेशनल कॉलेज आपको इस मिजाज का इदारा मिलेगा जिसमें आपकी शख्सियत को संवारा जाएगा। आप अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, गरीब होने का ताल्लुक इससे भी नहीं होता कि कोई अमीर है तो वो अक्लमंद है, जो गरीब है वो बेवकूफ है। ये सारे कंसेप्ट टोटली गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर पे चल रहे हैं लोग। तो एक तो ये है कि आपकी शख्सियत में तब्दीली, आपके किरदार में बच्चे तब्दीली, आपकी गुफ्तार में तब्दीली, आप छोटों से मोहब्बत से पेश आएँ, एहतराम से शफ़क़त से पेश आएँ, बड़ों का एहतराम करें, अदब करें। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज आपकी जिंदगी में ये ऐड करेगा। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज आपको फैसला करने की कुव्वत भी देगा और फैसला करते हुए आपको मशावरत का दर्स भी देगा कि कोई भी जिंदगी में बड़े से बड़ा छोटे छोटा फैसला करते हो मशवरा जरूर करो, घर वालों से करो। ये इवन कहा गया है, फरमाया गया है कि दीवार के साथ भी मशवरा कर लिया करो। हमारा बतौर एक कौम, हम एक कौम है, हमारी पहचान है, हम लोग ऐसे बढ़ते हुए लोग नहीं हैं। हमारी एक डोर है, डोर को हम थामे रहेंगे तो हम कामयाब हैं, उसे छोड़ दिया तो हम नाकाम हैं। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज आपकी जिंदगी में ये भी ऐड करेगा, आपको पूरा साथ हम सिखाएंगे। और रिफा इंटरनेशनल कॉलेज आपको इसलिए किसी धारे में नहीं जाने देगा कि आप किस मसलक से हैं तो किस मसलक से नहीं है। हम सब एक कौम है और एक है। दीवार से बाहर आपका सारे मसलक हैं, कबूल है, लेकिन इस कॉलेज के अंदर आप हम एक हैं, किसी को कोई डिफरेंस नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही कौम है, एक है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, है ना। तो इंशाअल्लाह हम लोग अच्छे तरीके से फलसफे को समझेंगे कि जो है कितनी सादा रंगीन है दास्तान हरम। मुझे शेर का मिसरा, गरीब हो सादा और रंगीन है दास्तान हरम। गरीब हो, इस शेर को थामे रखना है अगर आपने सच्चा मुसलमान बने। गरीब हो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत जिसकी हुसैन है इब्तिदा है इस्माइल। अगर इकबाल ने अच्छा शेर लिखा है तो इकबाल के लिए जरूर है। गरीब वो सादा और रंगीन है दास्तान हरम। गरीब भी है, सादा भी है, रंगीन भी है। उस रंगीन को खून का रंग दे दे, उस रंगीन को इससे खूबसूरत तारीफ नहीं हो सकती है कि निहायत जिसकी हुसैन है इब्तिदा इस्माइल। इस यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक होती, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम इसके मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इसमें भी आपको लेके चलेंगे बच्चे, फिर आपको कामयाब शहरी भी बनाएंगे। और ये मैं नहीं कहता कि आपको हम ऐसा बनाएंगे कि आप रोजी रोटी नहीं कमा सकेंगे, उसके बाद हमें बकायदा ये लिखा हुआ है आप ट्रेनिंग देंगे, दुनिया के साथ चलने का गुर सिखाएंगे, दुनिया के धर्म के साथ कदम मिलाने का। लेकिन सबसे पहले हम आपकी शख्सियत में तब्दीली ले आएंगे। फिर ओरिएंटेशन का मतलब ये भी है कि हम पूरा साल कैसे लेके चलेंगे। हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट, गर्मी भी है और आप लोगों के लिए मसाइल हैं, आप लोगों को पहली बात यहाँ आप अपने आगे रिफ्रेशमेंट का इंतजार भी होगा आपको। तो कैलेंडर हमारा है, आउटलाइन है, कैलेंडर बनेगा आपसे लेकर के उस वक्त तक कि जब आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स मुकम्मल होगा। हर दिन हर हफ्ते अपने क्या पढ़ना है बकायदा मेंशन होगा। आज ही से मेंशन है और उस आपके क्लास रूम के बाहर भी पढ़ा होगा, फाइल पड़ी होगी कि आपका कोई मोहतरम असातिज़ा ग्राम में कोई भी मौजूद प्रोफेसर टॉपिक पढ़ाएगा, आप उस टॉपिक को बकायदा उसके ऊपर लिखा होगा फाइल पे, आप भी साइन करेंगे, मौजूद प्रोफेसर भी साइन करेंगे। वो आपका कोर्स जो है लेके चलेंगे। आपको पता होगा कि किस दिन छुट्टी है तो आपने नहीं पढ़ना, किस दिन छुट्टी नहीं है तो आपने पढ़ना है। और वो जो ऑन डेज हैं, एक ऑफ डेज होता है जब छुट्टियां होती हैं, मुख्तलिफ त्योहारों की सूरत में, संडे की सूरत में, और एक ऑन डेज होते हैं। ऑन डेज में जब हमने पढ़ना है तो कोर्स में क्या क्या तरतीब चलेगी, उस पूरे कोर्स को हम लेके बाकायदा तौर पर एक कैलेंडर की सूरत में चलेंगे। रास्ता इधर से था कि भाई बात करो नज़्मों का सब पाबंद है, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा नज़्मों का पाबंद है। वो यूनिफॉर्म भी पहनेगा, वो टाइम पे भी आएगा, टाइम पे लेक्चर में भी जाएगा। और वो जो तमीज़, जो तरीक़ेकार, जो तरतीब होती है, जो तहज़ीब होती है, वो सब बच्चों के लिए एक ही कानून है, वो सब बच्चे उसके पाबंद रहेंगे।